Okay, Dr. Mukesh sir, I request you to now kindly invite our next speaker, Dr. Tusharika ma'am. Dr. Mukesh sir. Yes, sir. Thank you, Dr. Vijay. Dr. Tusharika Mukherjee, Master and PhD from Department of Applied Psychology, University of Kolkata, postdoctoral research in work and organizational psychology, Justice University, Gießen, Germany, in area related to human performance and personality. Earlier associations including Calcutta University Applied Psychology, West Bengal State University Applied Psychology, and Justice Leipzig University, Germany, work and organizational psychology, Center for International Development and Environmental Research, recently joined Asstt Kolkata. Area of interest including intercultural communication, sustainability in workplace, work-life balance, employee and leadership management, direction, consultant and training on employee mental health and work behavior. So I would like to welcome Dr. Please, ma'am. It's up to you. A very good afternoon to all of you. Has already described that I belong to the field of work and organizational psychology, and I've been working in this field for a long time now. So today I'm going to focus my discussion mostly on this area. And so you know that work and organizational psychology is the application of psychology principles, theory and research, which is mostly based in the work setting. And in everyday conversation, you might know that IO psychologists are often referred to as work psychologists. Since I belong to that field, so I'm discussing this with you today. But one thing we have to understand that the domain of IO psychology stretches well beyond the physical boundaries of the workplace, because many of the factors that influence work behavior are not always found in the work setting. Right. So these factors, they include the family responsibilities, cultural influences, employment-related legislation, and even non-work events. For example, you know how the terrorist attack of September 11, 2001, it completely changed the work life of many individuals. And of course, you know, we are living through the times of coronavirus, which has already had so many changes in how we work. But, you know, this might make you think that why do we need to talk about work psychology in the first place? Isn't working a very normal thing to do? I mean, everybody works, everybody has to work. So, and that is exactly where the answer lies. So, if you look at this slide here, so most adults, they devote the majority of their waking weekday and sometimes also weekends, like today we are doing this webinar on a Saturday, which is a weekend, we dedicate our time to work. And high school and college students too, they find themselves using a great deal of their discretionary hours in some kind of a part-time work. Even children are now brought up and educated in ways in ways that would ultimately lead to success as a working adult. Right. So for many, there is a great devotion of time and energy than to any other single waking human activity, so to say. For this single reason, we can assume that work is important to people, and there is of course this fact that most people, they need to earn money, and they do so by working. But the experience of work goes beyond the simple exchange of time and energy. So let us look at India. So Economic Times reported in 2019 that more than half of Indian working professionals, they rate their current work-life balance somewhere between average to terrible. Yeah? And significantly, as much as 45% of the respondents were from the non-metro cities, where work-life balance is supposedly not a very big issue. So lack of sleep, depression, anxiety and irritability, hypertension, and these came up as the top work-related illnesses. Back pain, frequent headaches and fatigue, as well as obesity, came up
came up as other stress-related physical illnesses. So you can see many of the issues that you would study in clinical or health psychology has a root in work psychology. As you can see, as you can see here, the 8-hour workday remains somewhat elusive, particularly for Asians, and an ILS study in 2018 showed that in South Asia and East Asia, on an average, workers are putting in 46 hours a week, which by global standards is quite huge. So here, I live in Germany, and here the maximum that you spend, the maximum time in a week that you spend on work would be somewhere around 36 hours to 39 hours, whereas in Southeast Asia it is up to 46 hours, which does not include the time we take to travel from our houses to workplaces. So you can see it can be a very stressful situation to be a worker at this in this contemporary world. So if you know that there is this Indian Factories Act which has stipulated an employer cannot ask a person to work more than 48 hours in a week. However, you can see what the average is. So 46 hours, so you can imagine there might be so many who are working more than 50 hours a week. Okay, so in this graph, I hope it is visible, in this graph, we can see a comparative analysis of annual working hours versus GDP per capita. You know what GDP is? So here is just a chart to show you that. So this clearly indicates what proportion of life, particularly in India, is invested in work. So when work is so important, it is very obvious that we should study it even more. And this is where IO psychology equips us in handling issues related to our work, its antecedents, and also it helps us in understanding what can be the consequence of all the work-related issues that we have. All right then. So we will now look at how this field has evolved, and if you have had a little bit of exposure to industrial or organizational psychology, you will know that IO psychology has its origin in the early 20th century. So several influential early psychologists studied issues that today can be categorized as industrial psychology. For example, you have heard of James Cattell at Columbia University, or Hugo Münsterberg at Harvard University, or Walter Dill Scott at Northwestern University. So Scott was one of the first psychologists to apply psychology to advertising, management, and personnel selection. And Robert Yerkes, as you might know, was an American psychologist best remembered for his work in the areas of intelligence testing and comparative psychology. He is also known for describing the Yerkes-Dodson law with his colleague John Dodson. And the Yerkes-Dodson law suggests that there is a relationship between arousal levels and performance, right? So then gradually things started to move in this field until the establishment of the Society for IO Psychology, which helped it gain a global recognition. Which helped this field gain a global recognition. So that led to the emergence of a wide variety of themes which we study now. So you know what are the themes that we study within this field? It could be individual differences, we study performance, selection decisions, training and development, work motivation of course, employee attitude, stress, well-being, safety, and then even later we started to study about diversity and fairness or inclusivity. Then how to form leaders, how to have effective teams, and there are many more topics which can be put into this paradigm right now. Okay, but I think you will ask me that all this is already done, right? So this is past. So what are the work psychologists doing right now? So this is all established already. So
now that you are studying psychology, or those who have selected work and organization psychology, what does your future look like? What is the work that is left, or what is the work that is now continuing that you can contribute to? So here in the next slides, we are going to explore the trends of 2022 in work psychology and see how we can contribute to this field. So what is the scope of a work and organizational psychologist right now? Okay, so I'll give you these are the things which are very important right now, and this field is now working to get these things arranged. So are your psychologists who focus on learning design, say they have been helping in many ways to include or implement different platforms and tools like learning experience platforms for virtual learning, and you know how important virtual learning is right now, to expand upon more traditional learning management systems, right? And they are now updating designs of learning programs to be more mobile and remote. And then we also have building cultures of agility and adaptability. So IO psychologists can now help organizations respond by applying diagnostic tools, as Dr. Modi was also talking about psychometry. So by applying diagnostic tools and designing other interventions to help organizations adopt new values and grow their capabilities. So HR practices or human resource practices like workforce planning, talent analytics, and other talent management and development practices are also helping the organizations increase their agility and adaptability. The changing nature of work. Of course, COVID has already changed our nature of work, but here I want to focus on artificial intelligence. So, although artificial intelligence has been influencing most technical domains, on its own, you will see that it lacks any theoretical understanding of human beings, correct? Or how they function. So IO psychologists, they have a unique role to play here by integrating psychological research on job performance and individual well-being with cutting-edge artificial intelligence techniques. Our opportunity is to strengthen the humanistic aspect of work by helping artificial intelligence to support us as individuals, correct? So IO is also helping us to make our workplaces a better working place, but of course it has to only do that with the help of psychologists. Okay, work-life integration, very important thing, and I'm sure everybody now understands the importance of work-life integration. So work-life integration is definitely trending for some time now, and in large part due to the shifts which took place in response to the COVID-19 pandemic. So we are now more focused on dealing with these things. So IO psychologists can help organizations understand the challenges that employees are facing right now. So they help organizations update the workforce practices that can increase engagement, that can have an impact on retention, on productivity, and also adoption of health behavior. For example, introducing stress management tools, or training people to be more flexible, and there can be many other kinds of intervention which are related to work-life integration, which are provided by the organizations right now. However, how do the organizations get to know about it? It's through the psychologists. Correct. Okay. Then we also have effectiveness across virtual and distributed environments. We are all very global right now, and we are doing everything on a global platform. So now that we are doing things virtually, so it allows me sitting in Germany to connect with you. And this is not the first time that I have had an interaction with your department. So very early on in the pandemic, so your department had also invited me for another webinar where it was only possible because we have now learned to work across virtual environments or distributed environments. So who
is actually designing this this program to be more effective? It is the psychologists who are helping the companies which work on technology, companies which are running all these platforms all together. So you can see how important it would be in the coming years when psychologists will play a major role in how to make it more user-friendly, how to make the interface nice, that there can be many aspects of it. Yeah? Okay. And then yes, of course, social justice. So the process of ensuring equal rights and access to opportunities, regardless of individual factors, has been integrated into many corporate social responsibility programs and, of course, organizational practices for decades. Yet, if you remember the George Floyd incident that happened, very recently, where George Floyd was killed by a white police officer in Minneapolis, so in 2020, and it seemed to be the tipping point for many organizations to integrate these programs further into the fabric of the organization, right? So IO psychologists, they are helping organizations address the issue of social justice by providing advice and also by facilitating approach, by facilitating their approach to identify the goals that we can set in the context of organizations' ecosystem, and also by developing a related roadmap. As in, by incorporating leadership commitment and employee and community involvement strategies, skill building strategies, or measurement tools, and there can be many more ways of looking at it. And they are trying to address this complex issue, which, with COVID-19, their inequalities seem to have enlarged a little bit more. So, psychology play an important role in this area as well. To move ahead, I'll quickly tell you about some more areas which are not trendy in this field. We have inclusive practices like diversity, equity, belongingness. You know how these things are important right now. Employee health, well-being, wellness, and safety, and then, of course, remote working and flexible working. And then there are some other examples which are here on the slide. The importance of meaning and purposeful work. So it is, you might have read the news papers in recent times where there are so many people who are leaving their jobs because they do not find enough meaning or purpose in the job that they are doing. So why is it happening? How can we retain employees, or how can we provide more meaning to the jobs so that employees, they also find enough purpose in working on that particular job? Is a very important aspect of modern times, isn't it? Of course, automation and leadership development, these are very trending research areas. So those who are going to work in the field of organizational psychology, or it can be anything, because at higher levels, you do not really have a separation or compartmentalization into organizational psychology, health psychology, positive or clinical. So there can be many things which can be put together to form your research program, isn't it? So, so these are the various areas where you can look into. Okay. One more thing which I really want to show you, which can be a little exciting for you as well. So if I'm not sure if you have heard of this mission, but there is this 2030 Mars mission where, human beings will be will be traveling to Mars, and they will do that as a space exploration program, and they would stay there for some time. And it gives me immense pleasure to to actually tell you that IO psychology is actually helping NASA to plan this trip to Mars, because you can imagine that the entire situation is going to be a very critical one, because you will be in a setup which you cannot change, and you have to you do not have any contact with anybody. In that closed situation, you will have to live with
your fellow astronauts for a long time. So it really needs a lot of team cohesion and, crisis management, because it's a very critical situation. So who is helping NASA to do this? It is psychology. Psychologists are now on board to decide and to see how human beings can still retain their sanity when they're out there and can still perform optimally. And of course, IO psychology is really helping NASA to achieve that. This is not just one example. There are many more. So you might have heard of how automobile industry is now gradually turning into full automation. So you will now have autonomous driving, but you can imagine that automobile industry does not understand human beings. It is the psychologists who understands, why, what motivates people, what is the perception, or how things can be seen in a different way by different individuals. So it is the psychologists who are helping the automobile industry to achieve this. So these are things which, as a psychologist, it excites me because there is so much work right now, and it also shows us that we have been doing good work, so that we can still reach so many aspects of human lives at this moment. Okay, and this is the chart. I'm sure you've seen this before. These are the different areas of sustainable development, if you know, and if you look at all these 17 aspects, you will see that psychology has a role to play in each and every sustainability development goals, right? So you cannot probably, take out one from these goals and say that, this is not where psychology can have an impact. Psychology has an impact because psychology is now stretched to sustainability as well. And because I do work on sustainability from a psychological perspective, so I can imagine, all these sustainability goals being put together within the paradigm of psychological research and studies. Okay, maybe a little bit about our responsibility as psychologists or emerging psychologists, particularly those who are interested in IO psychology. So there are certain things which we have to keep in mind because, as you can imagine, that there is always this conflict between whether IO psychology or whether clinical psychology, counseling psychology, what should we select? And what if I take up IO psychology? What is my future? How do I make my future brighter? So the responsibility is not only on the industry or the organization to recruit you, it is also your responsibility to be skilled enough to be recruited, isn't it? So the first thing that is important as an emerging psychologist is to reduce the gap between IO research and IO practice. So, you have to bring the two together so that, whatever you study is applicable. And you also have to understand that there will be competition from other fields. Because there are, for example, in the third point, you have that, there are students who will migrate to business schools and they can offer a lot of insights to the organization, and organizations might be interested in hiring them instead of IO psychologists. But then how do you make it possible? By making yourself skilled enough to be hired, isn't it? So you have to bridge that gap between IO research and IO practice. Of course, you have to increase the relevance in technology and globalized workspace so that, you can be more skilled. And of course, try to be as scientific as you can be. By scientific, I do not just mean quantification of data. It can be any approach that you do, but however, it has to be done in a scientific way. Okay, so the first three are very important. That is why I've just marked them in red. You can read the entire thing in the Manifesto for the Future of Work in Organizations, actually a very nice article which was published in the year 2019. You can just Google it and you'll find the entire paper there. Okay. Just maybe I'm taking a lot of time, but I'll just briefly tell you about the employability. So yeah,
So as Dr. Modi was also pointing out that how the job aspect of psychology is going to increase. So here you have the entire list, which tells you about the predicted increase in psychology jobs. So you can see here, because I belong to the field of IO psychology, so that is why I have just marked it in red, because it is also showing the highest raise that is predicted in this field. But you can also see, how military psychology, neuropsychology, so geropsychology or engineering psychology, sports psychology, recreation therapist, every aspect, every field within the psychology paradigm will see a high rise in these years. So so this is the prediction of 10 years from 2012 to 2022. And now you will, because of the COVID, I think things have changed even more. So who can be the top recruiters of IO psychologists? You can have scientific research and development services. For example, Dr. Modi pointed out about DRDO. And then you can always have management and scientific and technical consulting services, state government, schools, hospitals. If you might think that hospital for an IO psychologist, how will an IO psychologist find a position in a hospital? But you can imagine, there are many terminal illnesses for which you do need an occupational rehabilitation. IO psychologists can be very easily recruited as occupational rehabilitation experts there as well. Okay, so because I also teach psycho-oncology, so I know about these areas as well. So it's a growing field right now. Then you also have colleges, universities, and professional schools as part of academia. You can always find a place there. And of course, you have management of companies and enterprises. Now that we are in this age of startups and many NGOs which spring up very easily, and there is this environment where they do find a lot of opportunity to come up very easily. So where you can also find your place. Okay, so as far as the salary is concerned, so this I have just got from one of the websites. I'm not very sure about the ground reality there in India, but this is what it shows. So you can see a clinical psychologist can earn about say 3.5 lakhs per annum, and then an IO psychologist can also earn about 4.25 lakh per annum. So it's not a bad deal at all. So those who are thinking of finding jobs in this section, it's a bright future for you. Okay. Those who are interested in studying psychology outside, so I can only talk about Germany because I've done my a part of my education here. So I can just tell you that please do not restrict yourself to just one field. As in, if it is work and organizational psychology, it just has one approach. No, it is not that. So if you look at the different universities which function here and which do have a department of work and organizational psychology, they do it from different approaches. So you can have, say, in University of Bremen, where you can have social psychology combined with organizational psychology. But then you can also have Technical University in Chemnitz, where it is more seen from the perspective of work and economic psychology. So it's a different approach. Or say you have University of Freiburg, where you can see work psychology from the perspective of consumer psychology. And then you have the University of Munich, which is quite popular, and you can see psychology from the approach of economic psychology. Of course, you know of University of Leipzig, because Leipzig is very famous for psychology students. So it is a very general approach to work and organizational psychology. So you can approach any discipline from different approaches, isn't it? So that is why I have just collated some of the different approaches here. And with that, I would end this talk. So thank you very much for listening to this talk, and thank you, organizers, for having me today. Thank you so much, Dr. Tusharika, and it was really a wonderful presentation. And I must say that you had opened a new vista for all budding psychologists, because they can also, they should think of crossing the boundaries
because psychology, I believe personally, when there are human beings, definitely there is the scope of psychology. So whichever organization, so definitely IO is the new sector, new area which all of us should aspire for, and we should make efforts to get visibility and do something concrete. So thank you so much for joining us today, ma'am, and we look forward Thank you. to for the such programs. I request you to be with us for a few more minutes so that we can have this question answer session. Thank you so much. Now I am requesting Professor Anand sir, our guardian. Professor Anand Kumar, let me introduce, because words cannot do justice to what he has done in his career in psychology. So Professor Anand Kumar is a distinguished and globally well-known health psychologist, scholar, researcher, and a teacher par excellence. He formally superannuated in 2016 as professor and head Department of Psychology, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi. After serving the university for 38 years, which he had joined in 1978 as lecturer in psychology. In addition to publishing more than hundreds of scientific papers in reputed national and international journals, he successfully completed 2 research projects at the international and 4 projects at national level. His career is marked with so many distinctive high-impact contributions. He has been invited as keynote speaker in several academic forums, both in India and abroad, to address the professional communities, which included Harvard University, Boston, USA, University of Cambridge, UK, the University of Melbourne, Australia, International Studies University, Shanghai, China, Goethe University, Frankfurt, Germany, International Olympic Training Center, San Diego, USA, International Institute of Stress Management, Tokyo, Japan, University of British Columbia, Vancouver, Canada, Sports Medicine and Research Center, Singapore, to name a few. He has made significant mark in the field of sports psychology in India by serving as president of the Sports Psychology Association from 2002 to 2006. He represented Government of India as official sports psychologist of the Ministry of Sports in 1988 Seoul Olympics and 2000 Sydney Olympics. Professor Anand Kumar laid the foundation of Indian Academy of Health Psychology in 2015 in order to serve the people of India through the academy with a vision to improve health and well-being by creating awareness, spreading knowledge about this field. He is tirelessly working to organize local, state, national, and international level workshops, training programs, seminars, and conferences of health psychology. Currently, he is also the honorary director of Asstt Institute of Mental Health in Varanasi, which he established in 1997. He started the institute to offer psychological counseling and psychotherapy to meet the needs of residents of Varanasi. In 2007, he was conferred Kashi Ratna for his outstanding services in the area of psychotherapy by the Indian Association of Journalists. He has been honored with distinctions and awards by many national and international organizations. Best Speaker Award in 1983 by World Congress of Social Psychiatry, Osaka, Japan. Life Fellowship in 1983 by World Association for Social Psychiatry. Man of Achievement Award in 1991 by Cambridge University, UK. And Man of the Year Award in 2004 by American Biographical Institute, USA. And many more to come. We look forward. And he recently received the felicitation for outstanding contribution in the area of health psychology by Gurukul Kangri Vishyavidhyalaya, Uttarakhand. And sir, we are actually privileged. We don't have words to express our gratitude. We definitely look forward for your talk and your blessing, sir. Professor Anand Kumar. Thank you. Am I audible? Yes, sir, please. Okay. मैं आज चूंकि बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है और जैसा रश्मि जी ने कहा था कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए क्या कैरियर प्रॉस्पेक्ट होने चाहिए और उनके लिए क्या क्या टिप्स होने चाहिए इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए मैं अपनी ही भाषा में बात करना ज़्यादा अच्छा समझूंगा क्योंकि उनको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी में ही बात करना पसंद करूंगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए
मैं आयोजकों का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया। विशेष रूप से मैं माननीय कुलपति जी आनंद कुमार त्यागी जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। इसके अलावा डॉक्टर रश्मि सिंह जिन्होंने मुझे विशेष रूप से आग्रह किया, उनके लिए मैं विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर मुकेश कुमार पंत, डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी, डॉक्टर आरपी सिंह जी, डॉक्टर शंभू उपाध्याय जी, आप सभी लोगों का मैं अत्यंत आभारी हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ओरिएंटेशन। जैसा रश्मि जी ने कहा कि साइकोलॉजी में क्या, एमए करने के बाद हमें क्या क्या किन किन एरियाज में, फील्ड्स में काम करना चाहिए, क्या प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी मानसिक क्षमताएं हैं और हमारा अपनी जो रुचियां हैं, उसके अनुसार हमें कौन कौन से कैरियर साइकोलॉजी में दिखाई पड़ते हैं और उसमें किस एरिया में हमें काम करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या टिप्स हैं। काफ़ी अच्छा तो रितु मोदी जी ने बहुत ही डिटेल में बताया इसके बारे में, लगभग काफ़ी कुछ उन्होंने कवर कर दिया है। और ऑर्गेनाइज्ड साइकोलॉजी के लिए तुषारिका ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अपना, इससे तो एक मेजर एरिया कवर हो जाती है। लेकिन फिर भी साइकोलॉजी में मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर कई सालों तक जब मैं क्लास में जाता था पीजी में, तो एमए के बच्चे पूछते थे कि सर अब क्या, एमए पढ़ने के बाद अब क्या करना है। तो बच्चे इतने कंफ्यूज हैं आजकल कि उनको कैरियर के बारे में नहीं पता है कि साइकोलॉजी तो कर लिया, लेकिन अब साइकोलॉजी के बारे में आगे कैरियर का कोई नॉलेज ही नहीं है उनको कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस एरिया में जाना है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। साइकोलॉजी में दो मेन स्ट्रीम्स हैं, एक को बोलते हैं एकेडमिक स्ट्रीम, दूसरे को बोलते हैं प्रोफेशनल स्ट्रीम। तो एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों बिल्कुल दो राहें हैं। हमें किस पे चलना है पीजी करने के बाद, ये हमें डिसाइड करना होता है। एकेडमिक्स का मतलब होता है कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आप लेक्चरर या किसी स्कूल में टीचर के रूप में अपॉइंट होते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या और जगहों पर आप साइंटिस्ट के रूप में, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, रिसर्च फेलो के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये तो प्योरली एकेडमिक स्ट्रीम है, जिसके लिए आप देखते हैं कि पीएचडी करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको फेलोशिप भी देती हैं। आईसीएसआर है, डीएसटी है और आईसीएमआर है। ये ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आपको रिसर्च करने के लिए ग्रांट भी प्रोवाइड होती है। और ग्रांट प्रोवाइड होने के बाद आप जब पीएचडी कर लेते हैं तब अलग अलग संस्थाओं में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखते हैं कि शोध कार्य बहुत ही स्टूडेंट्स का आजकल मुख्य उद्देश्य रह गया है कि बस किसी तरह से पीएचडी की डिग्री मिल जाए। केवल डिग्री मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता है, और इसीलिए देखते हैं आपके शोध का स्तर दिन पर दिन बहुत गिरता जा रहा है, रिसर्च का लेवल भी बहुत गिरता जा रहा है। तो अगर हम एकेडमिक स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर अपने आप को हम एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे एक्सेलेंट रिसर्च की दिशा में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपकी टॉपिक, सबसे पहले जो आप अपनी टॉपिक चुनते हैं तो ये देखना पड़ता है कि उस टॉपिक की आपके अपने परिवेश में क्या उपयोगिता है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हमारे देश की अपनी समस्याएं हैं, हमारे देश के अपने कल्चरल रूट्स हैं। उसके अनुसार हमारी जो समस्याएं हैं उसके अनुसार ही हमें पीएचडी का टॉपिक मिलना चाहिए, ताकि हम अपने समाज को कुछ सार्थक दे सकें। जो भी हमारा रिसर्च हो सोसाइटी के लिए होना चाहिए, उसकी सार्थकता होनी चाहिए। इसलिए रिसर्च को लेना और रिसर्च के टॉपिक को लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो है उसमें अपने देश में कौन कौन सी समस्याएं वर्तमान समय में बहुत अधिक मुखर हैं, उसको देखना पड़ता है।
जैसे आप देखते हैं कि आजकल डिप्रेशन है, ड्रग एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, इसी प्रकार की दूसरी अनेक समस्याएं हैं जिन पर रिसर्चेस की सख्त आवश्यकता है ताकि हम अपने यूथ को कुछ सार्थक दे सकें। रिहेबिलिटेशन की बात आती है, वो भी रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो टॉपिक का सिलेक्शन रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप, इसलिए अभी मैं केवल एकेडमिक स्ट्रीम्स के लिए ही बता रहा हूँ कि एकेडमिक स्ट्रीम्स में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें रिसर्च के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं। और टॉपिक को चूज करने के लिए आपके लिए रिव्यू ऑफ स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप खुद रिव्यू ऑफ स्टडीज जितना इन डेप्थ रिव्यू ऑफ स्टडीज करेंगे उससे आपको एक आइडिया मिलेगी कि आपको किस एरिया में किस तरह से क्या काम करना है, क्या काम हमारे देश में अभी हो चुका है, किन के लिए रिसर्च हो चुके हैं और क्या आवश्यक है। तो इसलिए रिसर्च रिव्यूज को अच्छी तरह से देखिए और उसके बाद फिर अपने सुपरवाइजर से मिल करके अपने टॉपिक को डिसाइड कीजिए। और टॉपिक को डिसाइड करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि टॉपिक बहुत ही सार्थक हो, जो कि समाज को कुछ मिले, लोगों को कुछ मिले, उससे जो है कुछ आप दे सकें। क्योंकि केवल विदेशी कार्यों का एक अंधा अनुकरण करना बिल्कुल गलत है। बाहर एक काम हुआ है इसलिए हम भी अपने देश में इस काम को करेंगे। कोई काम इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है, अमेरिका में कोई काम हुआ है, अमेरिका की अपनी कल्चरल कंडीशंस हैं, हर देश की अपनी कल्चरल कंडीशंस हैं, आपके देश की अपने संस्कार हैं, अपने कल्चरल कंडीशंस हैं, आपकी अपनी समस्याएं हैं, आपके एडोलसेंट्स की, आपके एजेड लोगों की, आपके यूथ की समस्याएं बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो कि आपके सोशलाइजेशन पैटर्न से प्रभावित होती हैं, अपने कल्चरल प्रोग्राम से प्रभावित होती हैं। इसलिए उसको देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो भी टॉपिक हो उसमें केवल बाहर का अंधा अनुकरण न किया जाए जो है। और इसीलिए टॉपिक को चूज करते समय हमने अक्सर रिसर्च में देखा है कि जो आपके टॉपिक से संबंधित अगर रिसर्च की सूचनाएं हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, तो आप अपने हाइपोथेसिस को डायरेक्शनल बनाइए। नल हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्शनल, छोटे छोटे टिप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे बच्चों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे एमफिल में डिसर्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप देखिए कि अगर आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना सकते हैं तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाने का प्रयास कीजिए। और उसके अलावा जो है ऑपरेशनल डिफिनीशन जरूर होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑपरेशनल डिफिनीशन हमेशा मिसिंग रहता है जो है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप वेरिएबल्स ले रहे हैं, उसकी ऑपरेशनल डिफिनीशन क्या होगी, इस संदर्भ में आप उस डिफिनीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप यूज करेंगे तो आपकी रिसर्च की क्वालिटी बहुत एनहांस हो जाएगी। और जो भी आप टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वो अपनी कल्चरल कंडीशंस में एडाप्टेड टूल्स का इस्तेमाल करें। मैंने अक्सर देखा है कि पीएचडी में सीधे बाहर के टेस्ट को लिया, उठाया और अपने यहाँ बिल्कुल उसको रख दिया उसी तरह से। वो टेस्ट उनकी कल्चरल कंडीशन में बने हुए हैं, उनके सोशलाइजेशन पैटर्न पे बने हुए हैं। एलिनेशन की प्रॉब्लम आपके यहाँ दूसरी हो सकती है, अमेरिका में दूसरी हो सकती है। इसीलिए एलिनेशन टेस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपनी कल्चरल कंडीशन पर अगर इस्तेमाल करेंगे तब आप सही दिशा में जा पाएंगे, वरना रिसर्च आपका भटक जाएगा, उस डायरेक्शन में आप जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने ढंग से अपनी कल्चरल कंडीशंस में बने हुए टेस्टों का ही इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा जो है। इसके अलावा जो भी आप रिसर्च डेटा एनालिसिस करते हैं उसके बाद इन्फेरेंसेस जरूर प्रस्तुत करें। इन्फेरेंसेस प्रस्तुत करने से आपकी रिसर्च की क्वालिटी बढ़ती है, पता चलता है कि आपका वर्क है उसकी उपादेयता क्या है, क्या उसकी यूटिलिटी है उसकी जो है। और अपनी फाइंडिंग्स का रेलिवेंट जस्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती हैं तो लास्ट में आप कंक्लूड करते हैं तो उसकी फाइनल जस्टिफिकेशन अवश्य दें। इन सब बातों से आपकी रिसर्च की क्वालिटी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो है, अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्च एसोसिएट काम करते हैं तो अपने बच्चों को भली भांति उचित प्रकार से सलाह दे पाएंगे। और बच्चों के लिए भी ये टिप्स हैं कि अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो आगे चल करके काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। और रिसर्च के साथ ही साथ जो है उनके सामने केवल एकेडमिक कैरियर में टीचिंग ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, टीचिंग के साथ साथ रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च फेलोशिप भी दूसरी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जैसे DIPR है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो साइंटिस्ट ए से लेकर के साइंटिस्ट F यानी एक्ट
बार लेक्चरर टू प्रोफेसर, साइंटिस्ट एफ जो होता है वो प्रोफेसर रैंक के बराबर ही होता है जो है। तो वहाँ पर आपको रिसर्च से लेकर के और सारे काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं, वो भी आपका एकेडमिक एंडेवर ही है। तो एकेडमिक एंडेवर में डिफरेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में भी आप एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए करियर प्रोस्पेक्ट खुले हुए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है कॉलेज में टीचिंग की लाइन तो खुली हुई है, ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरी हम बात करते हैं प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव की। प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल देखिए, कोविड के पीरियड में लॉकडाउन और कोविड ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। आप देखते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, तमाम तरह की स्कूल प्रॉब्लम्स, बच्चों के साथ समस्याएं, घर में रहने से बच्चों की समस्याएं, मेंटल तरह तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ गए हुए हैं। मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, सब चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो उनसे भी बचाव के लिए जो है आपको ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजिस्ट की जो प्रोफेशनली ट्रेंड हों। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में कई एरियाज हैं जिसमें कि आप काम कर सकते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। मुख्य रूप से एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एज ए स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं। आप इस एरिया को चूज कर सकते हैं। एमए पास करने के बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, गाइडेंस साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपी में डिप्लोमा, या तीनों मिलाकर के भी बहुत सारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिनको करने के बाद आप समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी का एवेन्यू बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी से अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो डिफरेंट प्रकार के हॉस्पिटल्स में, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में साइकेट्रिस्ट के साथ मिल करके या पर्सनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स की साइकोथेरेपी में, डायग्नोसिस में। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी स्कोप आजकल काफ़ी हमारे देश में बढ़ा हुआ है। और इस एरिया में आप काम करने के लिए कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करते हैं तो उसकी वैल्यू, वैसे तो बहुत सारे 35 से ऊपर हमारे देश में क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करवाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं 8-10, जैसे निम्हांस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर। उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सीटें हैं, बट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ आपका एडमिशन हो जाता है, प्रॉपर तैयारी करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की। इसके अलावा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है। फिर उसके बाद रांची इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, रिम्पास है। इसके अलावा डिफरेंट एमिटी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे ब्रांचेज में भी जो है, जैसे जयपुर की एमिटी यूनिवर्सिटी में, गुड़गांव की एमिटी यूनिवर्सिटी में, लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में, इन सब जगहों पर क्लिनिकल साइकोलॉजी के एमफिल के कोर्सेज चलते हैं। इरभास का सादरा में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल का कोर्स चलता है। इसके अलावा एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई है, वहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ है, लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली है और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ है। ये कुछ प्रीमियर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं। आप पीजी करने के साथ ही साथ इन लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आने लगते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और ट्राई कीजिए। अगर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपने कोर्स कर लिया तो दैट इज हाईली पेड जॉब, काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा तमाम तरह की हॉस्पिटल्स से लेकर के प्राइवेट प्रैक्टिस से लेकर के बहुत सारे आपके सामने एवेन्यूज या इसके स्कोप खुल जाते हैं। इसके साथ ही साथ काउंसलिंग साइकोलॉजी या स्कूल साइकोलॉजी का स्कोप भी डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल काउंसलर्स का भी स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजी हमारे खुद काशी विद्यापीठ में 2004 से
डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस का कोर्स चल रहा है। इसमें हम लोगों ने 100 से ज़्यादा प्लेसमेंट दिए हैं, मोर देन 100 प्लेसमेंट्स। हमारे बच्चे सभी इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल और नवोदय विद्यालय से लेकर के दिल्ली पब्लिक स्कूल से लेकर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत सारी जगहों पर, बनारस के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सभी में एज ए काउंसलर काम कर रहे हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी डिप्लोमा के कारण। तो सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि प्रोफेशनल करियर के रूप में भी अगर आप इन सब कोर्सेज को लेकर के काम करते हैं तो उसकी काफ़ी वैल्यू है। इसलिए डिप्लोमा को लेकर के आप अच्छी तरह से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमा में केवल थ्योरी या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जरूरी है आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की नॉलेज होना। उसमें आपका ट्रेनिंग, आपकी इंटर्नशिप, वो बहुत महत्वपूर्ण भाग या बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। उसके लिए प्रॉपरली आप ट्रेनिंग प्राप्त करें, प्रॉपरली आप उसमें अपनी इंटर्नशिप करें, उसको सीखें आप। काउंसलिंग केवल थ्योरी की बात नहीं होती है, स्कूल साइकोलॉजी थ्योरी की बात नहीं होती है, स्कूल काउंसलर्स केवल थ्योरी की बात नहीं होती है। आप स्कूल में जाते हैं तो एज ए स्कूल काउंसलर आपको बच्चों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन बच्चों की समस्याओं के लिए सोल्यूशन देखना पड़ेगा। आपको पेरेंट्स और बच्चों के साथ मिलना पड़ेगा और उनकी समस्याओं को समझ करके उनके समाधान के लिए, उनके उपाय के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है। जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है स्कूल में टेस्टिंग करना, स्कूल में सारे बच्चों की टेस्टिंग करके उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइल बना करके, उनकी एकेडमिक प्रोफाइल बना करके, उनके अच्छाइयों और उनकी कमियों के बारे में, उनकी पोटेंशियल्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके एप्टीट्यूड के बारे में आप उनको, स्कूल को, गार्जियन को बताते हैं। ये काम होता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का। इसी प्रकार से काउंसलिंग के लिए बहुत सारे एरियाज हैं। आप ड्रग एडिक्शन की काउंसलिंग कर सकते हैं, आप मैरिटल काउंसलिंग कर सकते हैं, आप बच्चों की प्रॉब्लम्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, आप डिप्रेस्ड लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए भी अगर आप प्रॉपरली काउंसलिंग में ट्रेंड होते हैं तो बहुत सारे एरियाज में आप काउंसलिंग के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल काउंसलर्स, ये हमारे देश में बहुत उभरते हुए नए कैरियर के आयाम हैं। इन दिशाओं में आप काम कर सकते हैं। जो आपका पीजी का कोर्स है उसके बाद आपके पास दोनों ही स्ट्रीम्स में, एकेडमिक स्ट्रीम में जाते हैं तो एकेडमिक स्ट्रीम में, अगर आप प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाते हैं तो प्रोफेशनल स्ट्रीम में, दोनों ही स्ट्रीम में आप जिस हो आपको उपयुक्त हो, जिसमें आपकी कैपेबिलिटी है, जिसमें आपकी रुचि है, उस दिशा में आप जाइए और उस दिशा में आप प्रॉपरली काम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन केवल थ्योरेटिकल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा और आपको ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ेगी, प्रॉपरली इंटर्नशिप और प्रॉपरली ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ही आप इस एरिया में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली थ्योरेटिकल ज्ञान होने के बाद अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई भी स्कूल या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको अपॉइंट करता है तो वो जानना चाहता है कि आप उस स्कूल के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब तक आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपके पास अप्लाइड नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उसके लिए प्रॉपरली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वहाँ पर उनके लिए आप उपयोगी नहीं साबित होंगे। इसलिए उनके लिए उपयोगी साबित होने के लिए पहले खुद आप इस लायक बनिए, अपनी योग्यताओं में, अपनी क्षमताओं में इतना विकास कीजिए कि जिस एरिया को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं उसके में आपकी इन डेप्थ नॉलेज हो, उसमें आपकी पूरी पकड़ हो, पूरा ज्ञान हो, तभी आप उस एरिया में पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। तो एकेडमिक एस्पेक्ट को लेकर के और इसके साथ ही साथ प्रोफेशनल एस्पेक्ट को लेकर के दोनों ही कैरियर के प्रोस्पेक्ट और वैल्यूज आपके लिए खुले हुए हैं। और इन दोनों ही एरियाज में से जो भी एरिया आप पसंद करते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, उस एरिया में आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कैरियर या एवेन्यू की अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिसमें इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के जो बच्चे हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में और इस प्रकार के जो दूसरे क्षेत्र हैं
उसमें भी साइकोलॉजी की काफ़ी उपयोगिता है। तो आप चाहते हैं अगर आप इस एरिया में प्रोफेशनल एरिया में काम करना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इन सब एरिया में भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट हाउसेज में जो है, इंडस्ट्रियल सेटअप में, गवर्नमेंट एजेंसीज में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आप प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। एक ये भी कैरियर आपके सामने खुला हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। आजकल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के दूसरी सेल्फ स्टीम, उनकी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका एडजस्टमेंट, इन सब योग्यताओं को एनहांस करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अनेक प्रकार के कोर्स संचालित किए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप इस सारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको उस दिशा में रुचि है तो आप एक अच्छे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और उसमें भी अपनी कैरियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब आप मुख्य रूप से आपके कैरियर के प्रोस्पेक्ट हैं, जिसमें आप जा कर आगे अपनी उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स सर। प्रणाम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं प्रतिभागियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुछ आपके प्रश्न हो हमारे पैनलिस्ट से, प्रोफेसर आनंद कुमार सर, डॉक्टर रितु मोदी मैम और डॉक्टर तुषारिका मैम, सब लोग हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर लें, कुछ प्रश्न हम लोग लेंगे। और प्लीज अपना ऑडियो आप म्यूट रखें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं, डिस्टर्बेंस होती है। और सर ने वो बातें बताई जो व्यवहारिक हैं, जो हम सबको एज ए टीचर या जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और बहुत ही कम शब्दों में का जो भी अनुभव रहा सर ने हम सबसे साझा किया। एक प्रश्न है इसमें, अगर आप ये मेंशन कर लें, आप लोग जो पार्टिसिपेंट हैं, कि किनसे आपको पूछना है तो और बेहतर, अदरवाइज मैं ओपन क्वेश्चन है तो मैं रखूंगा, जो भी हमारे पैनलिस्ट आंसर देना चाहें। तो सबसे पहला तो फ्यूचर क्या है, मतलब साइकोलॉजी में एक प्रश्न है, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज द फ्यूचर इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि आनंद सर या रितु मैम, जो भी आप जवाब देना चाहें कि आज के परिप्रेक्ष्य, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनका प्रश्न है कि मनोविज्ञान में किस क्षेत्र में जाना चाहिए और सबसे ज्यादा स्कोप है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने देश के सिनेरियो को देखते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे अच्छा स्कोप है। इसके अलावा स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट के रूप में काफ़ी अच्छा स्कोप है। ये ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि इस एरिया में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा एक हैंडसम सैलरी प्रॉस्पेक्ट भी खुला हुआ है। एक और प्रश्न है इसमें सर, आप ही हमें लगता है इसका जवाब बेहतर दे पाए, क्योंकि विद्यापीठ से ही पूछा है कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो पीएचडी हम इसमें कर सकते हैं कि नहीं? तो पहले तो इनको जी बताएं सर आपके। जी, अगर आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन नहीं है तो उसके बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के लिए योग्यता केवल एमए इन साइकोलॉजी होती है। लेकिन अगर आपने पीजी में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हुई है तब आपके लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आएंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जो लोग स्पेशलाइजेशन किए रहते हैं उनको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के सारे चैप्टर्स के बारे में क्लियर होते हैं, सारे उसके एस्पेक्ट्स के बारे में क्लियर होते हैं। अच्छा, इसके साथ लेकिन कनेक्टेड क्योंकि है आपके वो क्लियर नहीं है, इसलिए आपको अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है। एक इसमें सूचना भी है सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं दे दूं कि हमने एक फीडबैक के लिए लिंक भेजा है,
और कल सुबह 10 बजे तक आप उसको जरूर फीडबैक फॉर्म, गूगल फॉर्म है, आप भर देंगे और उसके आधार पे आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको भेजे जाएंगे। ईमेल आईडी सही करेक्ट जो है आप भरेंगे। और कोई किसी का प्रश्न हो? अच्छा, साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर में कैसे करियर बनाएं? अच्छा, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के क्षेत्र में कैसे करियर बनाएं? मुझे लगता है इस पर काफी बात हुई है, फिर भी अगर हो गए हैं सर आप तो उनको बोल दीजिए ना कि वही अपना अध्यक्षीय उद्बोधन वही जी देंगे, जी मतलब कुछ बोल बिल्कुल। देंगे। और इसके बाद एक और हिप्नोसिस को लेके हाँ, कुछ और फिर जैसे आप धन्यवाद हिप्नोथेरेपी कर हो गया दीजिएगा। या एनएलपी हो गया, इसको लेके भी कुछ मुझे लगता है सर बच्चों के मन में है कि उसको कैसे, वो साइकोलॉजी से अलग है कि क्या उसमें करियर कैसे बना सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आप सर प्रकाश डाल दें कि अंतर ये समझ लें बच्चे कि क्या हिप्नोथेरेपी अंतर और एनएलपी का स्कोप अभी हमारे देश में बिल्कुल एक नया इमर्जिंग फील्ड है, उतना स्कोप नहीं है, इसलिए अभी करियर प्रोस्पेक्ट उतने नहीं है दोनों एरियाज में अभी हमारे यहाँ। और कैरियर के प्रोस्पेक्ट से हिप्नोथेरेपी आप सीख सकते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है अहमदाबाद में, एक बहुत बड़ी संस्था है और हमारे यहाँ कुछ अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनके नाम हम प्रोवाइड कर पाएंगे आपको बाद में, तो आप उनके थ्रू आप हिप्नोथेरेपी सीख सकते हैं और एनएलपी भी सीख सकते हैं। एनएलपी के भी कुछ स्पेशलिस्ट हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। आप उनके संपर्क में आना पड़ेगा और उनके द्वारा बताए गए कोर्स को ज्वाइन करके आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने के कोर्स वो कंडक्ट किया करते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे देश में भी उसका उतना स्कोप नहीं है। तुषारिका मैम, आई थिंक am I audible to you? Are you able to listen? Yes, I'm here. Yes, sir. There is one course nowadays in India, basically students are talking about PsyD. So what do you think? Would you like to shed some light on this course? How is it different than PhD or MPhil, or what's the scope if someone completes or gets this degree, PsyD? Because it's not very popular and it's not being offered by many universities in India. Okay. So thank you, Dr. Upadhyay, for your question. I'm afraid that I'm not very aware of the scope of this course and what the content is. So if anybody else would like to take that question, that would be very good. आनंद सर, ये साइडी का कुछ यहाँ पर आप बताएंगे इसके बारे में कि क्या कुछ? साइडी भी हमारे यहाँ पॉपुलर नहीं हुआ है इंडिया में। साइडी एक प्रकार का कोर्स है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में चलाया जाता है, वो डॉक्टरेट टाइप का कोर्स है ये साइडी। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये कोर्स अभी पॉपुलर है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मुझे लगता है ये आएगी कि अगर आप कल को अप्लाई करते हैं इस डिग्री के उस पे, तो चूंकि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड अगर नहीं है तो दूसरी बात ये है कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, यू राइट। जो हमारे उन्हीं कोर्सेज की जॉब वैल्यू है जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। क्या करूं कि साइडी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, इसलिए अभी दिक्कत आएगी। बिल्कुल। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी साइडी और पीएचडी। बेसिकली डिफरेंस है, साइडी जो क्लिनिकल एस्पेक्ट में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से रिगार्डिंग पीएचडी कोर्स है, तो जो इंडिया में बहुत अभी चल नहीं रहा है, तो फॉरेन कंट्रीज में ही ये कोर्स चल रहा है। बेसिकली ये पीएचडी के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड ट्रीटमेंट पे रिलेटिंग डिग्री प्रोवाइड की जाती है। यस मैम, राइट। और इसके बाद सर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन वैसे आपने इसके बारे में बताया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कह रहे क्या फ्यूचर है, मतलब कितना क्या इसमें किया जा सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी करने के बाद का कोर्स ज्वाइन करते हैं, स्पोर्ट्स करती है, ग्वालियर में है, आप काम कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी भी पर्सनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी रखते हैं अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, और इसमें भी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अच्छे पैसे हैं। एक क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, इनका ऑब्जर्वेशन है या एक सजेशन है कि काउंसलिंग के फील्ड में जो है
गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकालती है, तो इसके लिए जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में काउंसलर की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए और इसके दिशा में प्रयास करना चाहिए, इनका ऑब्जर्वेशन है। तो इस दिशा में क्या कुछ प्रयास हमारे यहाँ हो रहा है सर, कि या क्या उसके प्रयास हो रहा है, प्रयास भी हो रहा है, और धीरे धीरे आप इधर के लगातार के विज्ञापनों पे ध्यान दीजिए पिछले 6 महीने के, तो आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी काउंसलर्स को अपॉइंट कर रही हैं। नवोदय विद्यालय भी एक प्रकार का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, और दूसरे भी बहुत सारे इस समय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काउंसलर्स के पोस्ट को इस समय निकाल रही हैं। एक क्वेश्चन है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर रिसोर्स पर्सन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैरियर स्कोप इन रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी? सो टू एनी वन ऑफ यू, आप जो भी इसका रिस्पॉन्ड करना चाहे इस पे। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नॉलेज की, जिसमें कोई स्पेसिफिक कैरियर प्रोस्पेक्ट से नहीं है। ये दिस इज नॉट फ्रॉम ए कैरियर प्रोस्पेक्ट, दिस इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। तुषारिका मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग आल्सो? या मुझे तो लगता है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी को लेके अगर किसी में बहुत इंटरेस्ट हो, तो अगर वो उस पर रिसर्च करे, तो शायद काफी सारी फील्ड है साइकोलॉजी के अंदर ही जो एक साथ मर्ज हो जाएंगी, जिससे वो शायद स्पिरिचुअलिटी को लेकर रिसर्च कर सके। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का स्पेसिफिक कोई डिसिप्लिन साइकोलॉजी के अंदर अभी तक तो उतना इमर्ज नहीं किया है, तो मे बी। लेकिन एक चीज जो देखने को मिलती है कि जैसे ज्यादातर फील्ड जो इमर्ज होते हैं वो पहले शायद यूएसए में या फिर यूरोप में इमर्ज करते हैं, फिर इंडिया में शायद उसका प्रचार होता है। तो स्पिरिचुअलिटी तो वैसे ही यूएसए और यूरोप का कॉन्सेप्ट नहीं है उतना ज्यादा अभी, फिर भी कुछ लोग शायद काम कर रहे हो। तो शायद इंडियन स्टूडेंट्स अगर खुद चाहे तो उसका प्रचार करे या फिर उसका विस्तार करे, तो शायद बाद में जाके ये एक अच्छी फील्ड के तरह उभर के आए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो पैरासाइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, इंडिया में एक स्कोप जरूर, इंडियन साइकोलॉजी की जहां तक बात है, वहां पर जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम शुरुआत देखें इंडिजिनस साइकोलॉजी से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे ये, जब भी इंडिजिनस हम कह देते हैं, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी और जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ्स हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इसको ना देखा जाए, आप एक्सप्लोर करें, एक नॉलेज आप क्रिएट करते हैं, नॉलेज बेस क्रिएट होता है, एक कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है, कुछ आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ इंटरवेंशन प्लान बना सकते हैं, उसका अप्लाइड जो पार्ट है उसको देखा जा सकता है। सो इसके बाद एक प्रश्न है एनजीओ साइकोलॉजी, तो मैं खुद ही बता दूं, एनजीओ साइकोलॉजी ऐसा करके कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। साइकोलॉजी का यूज जरूर है एनजीओज में, और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स वहाँ काम करते हैं वो अपना करते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनजीओज भी प्लेस करते हैं, एनजीओज भी रिक्रूट करते हैं साइकोलॉजिस्ट को विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। और कोई प्रश्न इसमें तो नहीं मुझे दिख रहा है। कुछ रिसर्च से रिलेटेड है, एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कब निकलता है, कहाँ निकलता है, तो ये तो आप, जैसे सर ने कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और वो सब तमाम चीजें जो आती हैं, और रही बात टीचिंग जॉब में, तो मैम ने भी, रितु मैम ने भी कहा कि वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं, वहां भी रिक्रूटमेंट और तमाम चीजें। फैमिली काउंसलर, तो बेसिकली शायद आप कह रहे हैं फैमिली थेरेपी की बात है, कि क्या फैमिली काउंसलर भी कोई शब्द है क्या तुषारिका में? इज इट पॉपुलर समवेयर? इंडिया में तो ऐसा कोई फैमिली काउंसलिंग है, लेकिन फैमिली काउंसलर शब्द कितना क्या अप्रोप्रिएट आप बताना चाहें अगर? फैमिली काउंसलर वैसे शब्द तो यूज होता है काफी जगह पर, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट क्या है वो शायद सेम हो डिफरेंट कंट्रीज में, लेकिन दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही हो। जैसे हेल्थ काउंसलर हो गया, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, वो शायद फैमिली काउंसलर के हिसाब से काम कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टर्म्स में खो जाते हैं कि ये टर्म
ये लेबल है, ये लेबल है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट लेबल है वो शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली देखना है कि उसका स्कोप क्या है, उस पोजीशन का क्या स्कोप है और उसमें मेरा कितना स्किल है। डेफिनेटली। एक जहन में सर प्रश्न बच्चों की ये भी रहता है कि अगर आरसीआई रिकॉग्नाइज कोर्सेज की इतनी इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी की, या जो भी प्रोफेशनल डिप्लोमा भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग में है जो आरसीआई रिकॉग्नाइज करती है हमारे यहाँ, कुछ ऐसे जो कोर्सेज जो आरसीआई रिकॉग्नाइज नहीं है, जो सेम डिग्री मान लीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, स्पेशलाइजेशन जैसा है, तो वो एक डिबेट है उसका कितना, क्योंकि कुछ समय तक निमहैंस भी जो था वो आरसीआई रिकॉग्नाइज नहीं था, बाद में आरसीआई ने रिकॉग्नाइज किया, पर चूंकि वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट था तो उससे जो भी डिग्री लेके लोग आते थे, वो चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, या प्रैक्टिस के लिए भी हॉस्पिटल्स में, अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते थे। तो ये कितना क्या हो सकता है? रितु मैम या आनंद सर आप बताना चाहें। नॉन आरसीआई रिकॉग्नाइज इनका बेसिकली प्रश्न है, उनकी क्या उपयोगिता है? मैं यहाँ बताना ये चाहूंगी कि जो आरसीआई बेसिकली, जैसे इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे कई बार हम लोग मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं, लाइक स्ट्रेस है या कोई और तरह की दिक्कत है, स्लीप इश्यूज हैं, और आप जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं तो वो भी आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑथराइज्ड है बेसिकली साइकेट्रिस्ट के पास ही हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो हमें साइकोलॉजी से डील करना चाहिए। तो आरसीआई बेसिकली एक प्रकार का लाइसेंस देता है कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। लेकिन बहुत सारे और जैसे कोर्स है, सपोज गाइडेंस एंड काउंसलिंग के काफी सारे कोर्सेज है जिसमें कि जरूरी नहीं है कि आरसीआई से रिकॉग्निशन होना जरूरी है। तो आरसीआई एक बॉडी है जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर कोर्स और जहाँ जॉब की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वहाँ कहीं कहीं कंपल्सन कर देते हैं आरसीआई की। लेकिन इसके अलावा भी जो कोर्सेज हैं जो आरसीआई से रिकॉग्नाइज नहीं है, उनकी भी वैल्यू है, लेकिन ये देखना है किस एरिया में वो पर्टिकुलर कोर्स है। स्पेशली काउंसलिंग एरिया में और स्कूल साइकोलॉजी के एरिया में, स्कूल काउंसलर्स के एरिया में आरसीआई की रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी एरियाज में आप ऑलरेडी काम कर सकते हैं, इसमें आरसीआई की कोई भूमिका नहीं है। और बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम काउंसलिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं, स्कूल साइकोलॉजी में कर रहे हैं, तो आरसीआई की हमारे पास रिकॉग्निशन नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए इसमें आरसीआई की रिकॉग्निशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आरसीआई की रिकॉग्निशन की आवश्यकता केवल क्लिनिकल साइकोलॉजी और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में है। रिहेबिलिटेशन की अगर कोई आप कोर्स करते हैं वहाँ पर आरसीआई की रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा किसी प्रकार के काउंसलिंग में आरसीआई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक सर दुर्गेश जी, क्वेश्चन रेज हुआ था फैमिली काउंसलिंग रिलेटेड। मैं इन जनरल प्रैक्टिस जो काउंसलर्स प्रैक्टिस करते हैं वो फैमिली को काउंसलर प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो लीगल सेटअप होता है, कोर्ट रूम होते हैं, वहां पर फैमिली रिलेटेड केसेस आते हैं, वहां पर एक स्पेशलिस्ट काउंसलर अपॉइंट होता है फैमिली काउंसलिंग के लिए। और जो इंडिया में महिला थाने वगैरह होते हैं, महिला थाने में भी एक काउंसलर होता है जो वहां पर फैमिली रिलेटेड केसेस जो होते हैं, खासतौर से डाइवोर्स केसेस होते हैं या फिर फैमिली डिस्प्यूट केसेस होते हैं, उसके लिए काउंसलर्स जो होते हैं वो वहां पर अपॉइंट होते हैं। तो दो बेसिकली सेटअप है इंडिया में, एक तो कोर्ट रूम लीगल सेटअप में, और यहाँ पर आपके महिला थाना में खास तौर से काउंसलर्स अपॉइंट होते हैं, फैमिली काउंसलर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है डिजिग्नेशन ही फैमिली काउंसलिंग का होता है, उनके डिजिग्नेशन ही फैमिली काउंसलर का ही होता है। हाँ बिल्कुल सर। अगर जो कोर्ट में स्पेशली डाइवोर्स केसेस में, जितने भी डाइवोर्स केसेस होते हैं, तो डाइवोर्स केसेस में जज सारे अपने केसेस को पहले फैमिली कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट में एक जज होता है, फैमिली काउंसलर होते हैं, वहां पर वो केसेस जाते हैं और सबसे पहले अगर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वहां से सॉल्व नहीं होता है, तब फिर दोबारा वो लौट करके फिर वो वापस उसी जज के पास भेजे जाते हैं अपने नोटिंग के साथ। बिल्कुल। एक बड़े डेस्परेट लग रहे हैं पैरासाइकोलॉजी को लेके, इसमें कह रहे हैं कि कैसे रिसर्च किया जा सकता है। सर आपसे पूछ रहे हैं। पैरासाइकोलॉजी में भी इंडिया में कोई रिसर्च की संभावनाएं नहीं है बिल्कुल ही। पैरासाइकोलॉजी फिर बात वही आई जैसे कि उन्होंने बात की थी स्पिरिचुअलिटी की, तो पैरासाइकोलॉजी में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैरासाइकोलॉजिस्ट के रूप में कोई कैरियर स्कोप नहीं है।
फॉरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में एक प्रश्न है कि ये क्या है, और क्योंकि ब्रीफली बताया गया है, हर चीज बताया भी नहीं जा सकता है. सो एनी वन ऑफ यू, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट a little bit forensic psychology and institutions that offer courses in India, and of course the future prospect or career prospect क्या हो सकता है. जैसा कि हम लोगों ने मैंने अपने लेक्चर में फॉरेंसिक साइकोलॉजी का बताया था. फॉरेंसिक साइकोलॉजी बेसिकली क्रिमिनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि कई बार आप कोर्ट रूम में देखते हैं कि जिसने क्राइम किया है उस क्राइम के पीछे इंटेंशन क्या है, क्रिमिनल का जो बिहेवियर उसको जज किया जाता है. और लीगल सेटअप में आप एज ए कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं. गुजरात में गांधीनगर में फॉरेंसिक साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं. तो अगर आप वेबसाइट पे उसका डिटेल देखें तो आपको मिल जाएगा. और मैंने अपने पीपीटी में कुछ लिंक भी शेयर किए थे, तो वो लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो आप वहां से आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आप कहाँ किस इंस्टीट्यूट में कोर्स कर सकते हैं. ये एक इमर्जिंग ब्रांच है और फॉरेन में तो इस पे काफी कोर्सेज भी चल रहे हैं. गुजरात में जो रक्षा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो भी कोर्सेज चला रहे हैं वो लोग प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं. वहाँ पे जो एडमिशन हो जाते हैं तो फिर वो प्लेसमेंट की भी उनकी जिम्मेदारी रहती है, प्लेसमेंट भी वहाँ से काफी अच्छा मिलता है. एक सर आखिरी प्रश्न लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे. हमारे वर्तमान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर आरपी सिंह साहब, हम लोग के प्रोफेसर विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं. तो हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक प्रश्न केवल ले लें. एक इनका है कि गर्ल्स के लिए साइकोलॉजी में सबसे बेस्ट कौन सा एरिया हो सकता है. तो अगर एनीवन, रितु मैम, वुड यू लाइक टू रिस्पोंड? कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता है भाई. आज के जमाने में आप जेंडर डिफरेंस को लेके चल रही हैं कि गर्ल्स के लिए क्या अच्छा है, बॉयज के लिए क्या अच्छा है. सबके लिए सब, कोई भी ब्रांच, कोई भी एरिया सबके लिए अच्छी होती है. सबसे बड़ी चीज होती है आपके अंदर की पोटेंशियल और आपके अंदर का इंटरेस्ट. जिस भी एरिया में आपके अंदर पोटेंशियल हो, कोई एरिया हम बताते हैं बहुत अच्छा है, तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, तो आप जान के क्या करेंगी. सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अनुसार ही हमेशा आगे कैरियर का चुनाव करना चाहिए. So thank you so much all the participants. हाँ मुकेश सर, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इंटर्नशिप के लिए. जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से बनारसी से बिलोंग करते हैं या किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका बार बार ये क्वेश्चन रहता है कि इंटर्नशिप के लिए किस तरह से हम मैनेज करें. तो नेचुरली जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट आपको इंटर्नशिप फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. 1 मंथ इंटर्नशिप या फिर 3 मंथ इंटर्नशिप की प्रैक्टिस का वो प्रोसीजर रखता है अपने सिलेबस में. वो प्रैक्टिस करते हैं, पर उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रैक्टिस करना है, किसी भी प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर हैं या साइकेट्रिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, उनके साथ तो प्रैक्टिस करना है, तो आपको पर्सनली उनसे परमिशन लेने की जरूरत होती है. आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पर उनकी जो सेटअप है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. और कई बार इसमें इंस्टीट्यूशनल परमिशन की बात आती है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट में आपके किस तरह से है, तो वो आपको इंस्टीट्यूशनल परमिशन या लेटर मिल सकता है. बट वो उसमें ये कंडीशन रहेगा कि कई बार इस तरह से होता है कि नहीं, स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि हम इस समय यहाँ पे पार्ट है, तो जब आप पास आउट कर जाते हैं एज ए एलुमनी, आपको वो सर्टिफिकेट मिल सकता है इंस्टीट्यूट से. तो आप कहीं से भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है. इंटर्नशिप के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आजकल दिल्ली और उसके आसपास आप देखेंगे कि बिल्कुल वो इतने सारे इंटर्नशिप कराने वाले फेक इंस्टीट्यूट खुल गए हुए हैं. छोटे छोटे बच्चे जो कहीं भी एक छोटा सा डिग्री प्राप्त कर लिया है और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल करके इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया है. 4 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप है, फीस हजारों रुपए में है और वो मनी मेकिंग बिजनेस बना रखा है. इसलिए इंटर्नशिप करते समय आपको बहुत सावधानी की जरूरत होती है. आप ये उनकी प्रोफाइल देखिए, जो इंटर्नशिप का जो मेन रिसोर्स पर्सन है, जो की पर्सन है, जो इंटर्नशिप कराने वाला है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और वो उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है. वहां पर आप जाकर के सचमुच में कुछ सीख पाएंगे या केवल एक कागज का टुकड़ा हाथ में लेकर लौट आएंगे. इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. और बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इंटर्नशिप.
इंटर्नशिप कहीं भी ज्वाइन करने से पहले, चाहे किसी भी जगह, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता लगाने के बाद ही आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल द पैनलिस्ट और हमारे जो रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज हैं, पार्टिसिपेंट्स, कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, सबको मैं अब ये बुलाना चाहता हूँ हमारे जो वर्तमान संकायाध्यक्ष हैं समाज विज्ञान संकाय, हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरपी सिंह सर, कि अपने आशीर्वचन दें और धन्यवाद ज्ञापित करें और इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की तरफ ले जाएं। प्रोफेसर आरपी सिंह सर, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आप सर अनम्यूट कर लें। और जी सर, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करा लें। संतोष जी उसको देख लीजिए। हाँ, आवाज पहुंच रही है? जी 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 सर। सर यस सर आ रही है। हाँ, मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप जिसका टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटी एंड एवेन्यूज इन साइकोलॉजी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर ए.के. त्यागी जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, संरक्षक हैं। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं एवं उनको धन्यवाद देते हैं कि एक संरक्षक के रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय दिए। चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जो मनोविज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे। अभी मैं उनका लेक्चर सुन रहा था और भी सुनने का अवसर मिला है। तो प्रोफेसर आनंद कुमार जी के विषय में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आप तो हेल्थ साइकोलॉजी के जनक हैं और मनोविज्ञान विभाग में काउंसलिंग, गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी का डिप्लोमा की शुरुआत करने वाले आप ही। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस सर का बहुत अच्छा लेक्चर रहा और जहां भी हम लोग आपको याद करते हैं, आप अपना सहयोग हम लोगों को हमेशा देते हैं। हम इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कन्वीनर के रूप में डॉक्टर रश्मि जी, जो मनोविज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वर्तमान एचओडी हैं, और मैं देख रहा हूं कि चार्ज लेने के बाद ही रश्मि जी मनोविज्ञान विभाग को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रही है और उनके द्वारा यह वर्कशॉप आयोजित किया गया है। उन्होंने अपनी टीम को लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वर्कशॉप की, जिससे कि हमारे बहुत से छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। हम उनको अपनी तरफ से, मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर रितु मोदी, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की हैं, हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है और अपने लेक्चर से बहुत सारे सहभागियों को जागरूक किया है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनको अपना करियर बनाने में कौन कौन से अवसर हैं। उन्होंने इसके लिए हम उनके प्रति विभाग की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में नेक्स्ट डॉक्टर तुषारिका मुखर्जी जी, जो ट्रेनिंग फैसिलिटेटर फ्रॉम जर्मनी, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की है
और एक अच्छा स्पीकर के रूप में उनका योगदान रहा है। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे विभाग के 2 नौजवान और लेबोरियस और पूर्णतः विभाग को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं, डॉक्टर दुर्गेश जी के प्रति भी हम ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों का सहयोग विभाग को हमेशा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का विशेष योगदान है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम प्रोफेसर शंभू उपाध्याय जी जो हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के चीफ प्राक्टर रहे हैं, डायरेक्टर भी गंगापुर और एनटीपीसी के रहे हैं, उनका भी हमेशा मनोविज्ञान विभाग को ऊंचाई पर पहुंचाने में उनका योगदान रहा है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, प्रोफेसर उपाध्याय जी अपना अमूल्य समय विभाग को देते हैं, हम लोगों को देते हैं। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ हम अन्य सहयोगी गण जो पार्टिसिपेंट के रूप में देश विदेश से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, अपनी सहभागिता कर रहे हैं एवं बहुत से छात्राएं भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का बहुत योगदान रहा है। साथ ही साथ आप लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र। यहाँ तक हमारे बहुत से वक्ताओं ने ये बताया है कि मनोविज्ञान विभाग मनोविज्ञान करियर के क्षेत्र में कितना अवसर प्रदान करता है। करियर अपॉर्चुनिटी मनोविज्ञान पढ़ने से या मनोविज्ञान का आपको जागरूक करने में मनोविज्ञान का कितना योगदान है। यहाँ तक मेरा विचार है कि हाँ, आप लोग मनोविज्ञान में जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। आप इसे पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं कि जो आपको जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी के भी अवसर, करियर में अपॉर्चुनिटी के भी अवसर उससे मिलता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपके व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आपकी व्यवहारिकता आपको ऊंचाई पर ले जाती है, आपको करियर बनाने में और हर ढंग से आपको एक अच्छा बनाने में, समाज में एक नेक इंसान बनाने में सहयोग देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यदि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, विभिन्न ब्रांच में जो कुछ भी हमको ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यदि उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें तो निश्चित है कि हमको करियर बनाने में मनोविज्ञान का अपनी कौशलता स्किल को कैसे बढ़ाएं। साथ ही साथ मनोविज्ञान के क्षेत्र में जैसे काउंसलिंग एंड गाइडेंस, इसमें हम जैसे एजुकेशन काउंसलिंग,
क्षमा करें सर। यदि सर हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर जुड़ चुके हैं और अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने समय निकाल करके हमें अपना आशीष वचन देने के लिए यहाँ पे वो आए हैं। तो मैं आग्रह कर रही हूँ और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अपने कुलपति जी से आग्रह करती हूँ कि वो कृपा करके अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें और हमें अपने ब्लेसिंग्स दें। सर Am I audible? जी सर, बिल्कुल। You are audible, sir. Thank you. It is really a matter of great privilege that today we had a workshop on employment potential in psychology. As we all know that psychology is basically a bigger umbrella, and it embraces almost all activities, whatever is being happening on this planet. They may be the general counseling, they may be clinical or developmental aspects, maybe industrial or organizational behaviors, maybe the counseling in educational institutions, in schools, colleges and universities. Investigative psychology may be forensic. They may be advisory in nature, like in sports, in career counseling. Similarly, sometimes the anxiety elimination and focusing strategies, they may be ensuring the mental health. Similarly, career guidance, experimental and rehabilitation psychologies, and some specific type of psychologies, including military psychology and other things. So if we see any activity, wherever it is, whether it is the social aspect of the human being, or it is the developmental aspect, or whether it is the health, or even the service sector, production sector, manufacturing, almost everywhere, the psychology plays a vital role. As educators, our role is also being changing, because the way the knowledge is being transferred to the disciples, to the students, to the learners, that mode has undergone a very rapid change. Over here, one thing is very important, that earlier the knowledge was being shared with the disciples only in classroom, but now knowledge is available almost everywhere. It is floating in the air. You can grab it anywhere, wherever you are. In such cases, the roles of psychologists has further increased, that how to make the learning process more attractive. Unless or otherwise we investigate the psychological aspects, it will be really very difficult to actually finalize the learning strategies. So that is what is the basic role of psychologists as teachers are. And the Department of Psychology may play a pivotal role, not only in advising their own students, but also advising the other departments of the university. And this advice not only be confined to students, it may be extended even to the teachers. So we can have some psychological sessions wherein you can analyze the mental makeup of the teachers, mental makeup of the students, and accordingly we can finalize that this is how we can make learning a fun, we can make learning more attractive, and we can ask more and more students to come to the classes. Because mostly these days teachers, they complain that the students are not coming to the classes.
In fact, we have never tried to investigate that as to why they are not coming. What is the problem? Where is the lacuna? If we really sit as a team of psychologists and then we try the analysis of the group of students, then we can easily make out that what should be the lesson plan and other things. Similarly, for teachers also, you can have certain sittings, and over there you can analyze the mental makeup of different teachers, and you can advise them that this is how the learning can be facilitated, it can be made more effective. So that type of analysis probably may be taken. This may be taken as an in-house activity to start with, and then you can even extend it to counseling to other colleges and other universities also. Today, I have heard that some of the basic aspects formally concentrating only on employment potential. So as far as psychology is considered, I find that there is enormous employment potential, and almost everywhere our students can be getting job. The only thing is that whether they excel in their area or not. So we have to basically plan in such a way, we have to plan our value-added courses in such a way that they will be more relevant to the industry, they may be more relevant to the service sector, they will be more relevant to the manufacturing sector, and then probably the entire job potential, whatever is available for this very important area, that may be exploited at its best. And our students may be well placed, and they may be getting handsome salaries also. And one more important thing here I would like to share, that whatever are the basic tools for psychological analysis, they may be the various instruments or they may be the various software tools, probably they should be available in our laboratories. So that aspect is a must. We have to, unless or otherwise we pay attention towards it, it will be really very difficult to actually analyze the human being. So those developmental aspects, they have to be addressed. Like the other day, I got a proposal on music therapy. Similarly, there may be several other aspects. So you can plan different activities, different laboratories, and we can have a number of instruments, such instruments wherein you can analyze the personality in full, and then you can have advice session, counseling sessions accordingly. I feel that this workshop will be very effective in sensitizing not only our students, but our teachers also. And now probably we will be understanding the importance of psychology in a better way, so that we can help the process of knowledge dissemination, and we can ensure that the knowledge dissemination will not only be serving the purpose of knowledge transfer, but it will also be taken as a pleasure, as a fun, and the things will be becoming attractive for both teachers as well as students. With these words, I thank the organizer. I thank Professor R.P. Singh ji. I thank Professor Anand Kumar ji. I also thank the speakers, Tusharika, Ritu ji, and Durgesh and Mukesh ji, those who have contributed directly or indirectly to the successful completion of this workshop. And I feel that in the days to come, in the months to come, in the years to come, we will keep on getting the same sort of cooperation from all quarters. At the same time, recently, Dr. Rashmi has taken over as head of the department, and we feel she has started with a good note, and this momentum will continue, and the Department of Psychology will keep on flourishing under her guidance, under his effective leadership. That with these words, I thank the organizers, I thank all the participants who contributed and listened to the speakers wholeheartedly and with full devotion. Thanks a lot. Thanks to everybody. Thank you so much, sir, for your kind words. And we can only assure that yes, we will do our best, and we'll try to not only establish the department, but we try to grow the knowledge and disseminate it also. So definitely, with your blessings, it will be possible.
Now, we are about to end this session. I would request Dr. Mukesh Kumar Pansar to give some information regarding the feedback and the other possibilities. Dr. Mukesh Kumar Pansar. Thanks, Dr. Durgesh. So, participants, जैसा आपको पता है आपके चैट बॉक्स में जो फीडबैक फॉर्म है उसको शेयर किया गया है, तो उसको आप लोग कल सुबह 10 बजे तक हर हाल में फिलअप करके उसको सबमिट कर दें, जिससे आपके सर्टिफिकेट जनरेट हो सके इस वर्कशॉप से रिलेटेड। और उसके साथ साथ लाइव वीडियो भी शेयर किया गया है, उसका लिंक भी शेयर किया गया था। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट्स ने, किसी भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉल किया इस दौरान जब ये सेशन चल रहा था। हमारे पास भी, हमारी पूरी टीम के पास बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स का डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कॉल आया, तो आप उसको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको कलीग्स उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो उस लिंक के माध्यम से वो यूट्यूब पर उस वीडियो को, इस सेशन को फिर से देख सकते हैं। और इसको समअप करने पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सभी लोग एक बार अपना वीडियो जो है उसको ऑन करें, जिससे एक ग्रुप पिक ली जा सके। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट one more. Okay, so I think it's done, sir. So thank you so much. With due respect, Professor Anand Kumar Tyagi, Honorable Vice Chancellor, if you allow us, we can end the session. I think sir has left. So, Rashmi ma'am, RP Singh sir, आप कहें तो सेशन को यहीं खत्म किया जाए, फिर अगले मुलाकात के इंतजार में। Definitely. And thank you, our Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you, Professor Anand Kumar, sir. And special thanks to Professor Rajendra Prasad Singh, sir, who is our Dean and ex-HOD. Thanks to my wonderful team, Dr. Mukesh Kumar Pantji, Dr. Durgesh Upadhyay ji, and Dr. Kanchan Shukla ma'am, Dr. Santoshi, Dr. Rashmi Rani ji, Dr. Purnima, Dr. Deepmala, and all the students, research scholars, faculty members, and all my dignitaries. Special thanks to our resource person for sharing your knowledge, for sharing the information, and sharing your valuable time with us. Dr. Tusharika and Dr. Ritu Modi, who were with us for the whole time, though the time exceeded quite, but still, the information and deliberation was very useful for not only for the students, for us also. So thank you once again. With the kind permission of our Dean, RP sir, I announce the completion of this online workshop. Thank you once again. We will again meet with some informative workshop very soon. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.